Good morning dear students. Once again welcome in DP class, Democratic Politics. Your half yearly exams will start in this month. So today we will revise the first chapter of DP, Power Sharing. Okay, I have already sent you video. If you want to watch all the content you can watch. But today we will revise the main questions and answers. Clear? So first chapter, revision of lesson 1, power sharing. Firstly, that is maybe asked in 1 marks, what is the meaning of power sharing? Power sharing means sharing of responsibilities and we can say that the powers by the different organs of the government, not only one organ, yani different organs. Different organs, what is the different organs? Legislatures, executives and judiciary. Clear? So that is the questions ki what do you mean by power sharing? Power sharing means sharing. Kya sharing karna? Responsibilities and powers by the different organs of the government. Clear first questions? Now we will discuss about the Belgium and Sri Lanka ethnic composition. That questions also asked in 3 marks. Ki what is the ethnic composition of Belgium or what is the ethnic composition of Sri Lanka? Before that, we will discuss about the Belgium. Belgium यानी कि in which continent is Belgium? यानी कि in which continent is Belgium? कि Belgium कौन से continent में आता है? In Europe. तो what is the answer? Europe. Belgium is a small country in Europe, and that is यानी कि नेम द कंट्रीज दैट बेल्जियम बॉर्डर्स या बाउंड्रीज विद कंट्रीज. तो दैट इज ऑल्सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यानी कि बेल्जियम्स बॉर्डर्स विद द दीज कंट्रीज. विच आर द कंट्रीज? फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग. क्लियर? वी हैव डन 3 क्वेश्चंस. व्हाट डू मीन बाय पावर शेयरिंग? इन विच कॉन्टिनेंट इज बेल्जियम? यूरोप आंसर. एंड या नेम द कंट्रीज दैट बेल्जियम सराउंडेड या वी कैन से दैट द बॉर्डर्स विद countries. So what is the answer? France, Germany, Netherlands and Luxembourg. Up to clear? Now we will discuss about the what is the ethnic composition of Belgium. कि what is the ethnic composition of Belgium? कि ethnic, what is the meaning of ethnic? मतलब social division based on shared culture. That is also asked in 1 marks question कि what do you mean by ethnic? Ethnic means social division based on shared culture. Clear? Now we will discuss about the what is the ethnic composition of Belgium. You have already watched the video many 2-3 times. So now it means here you know very well. Mainly 2 languages spoken here. Mainly Dutch and Dutch speaking 59% or French speaking 40% and third language German. But ask which are the 2 languages mainly spoken here. So what is the answer over here? French and Dutch. Clear? Now how much percentage of people speak Dutch here? That also questions. What answer can we give? Dutch speaking people here 59% or how much percentage people speak here French? So how much percentage of people speak here French here? 40%. Or how much percentage of people German speak here? 1%. Okay. Now next question arises कि those people speaking the Dutch speaking यानी कि in particular in which area they are living? They living in the Flemish region. यानी कि they living in which area? Flemish area. Those people speak here Dutch speaking. यानी कि how much percentage? 59%. They live in which area? Flemish region. Clear? And now the French speaking 40% people or they live in which area? Wallonia. Clear? यानी कि French speaking people live in which area? Wallonia. Or German speaking how much percentage? Only 1%. Maybe they live in Dutch in the Flemish region and the Wallonia regions. But now what is the capital city of Brussels? That is the capital city of Brussels. Okay. And here French speaking. Now opposite. यानी कि here in the country 40% people speak French. Or in the capital city how much percentage of people speak French? 80%. Or Dutch, how much percentage people speak here? Only 20%. So what can we say that? It means Dutch speaking people are in the majority in the country, but in the capital city they are in the minority. That is the questions also arises. So that's why there is a tensions between the Dutch speaking and the French speaking people in 1950 to 1960.
ये क्वेश्चंस भी बन सकता है कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल में कब टेंशंस हुए, कब उनके बीच में डिस्प्यूट्स अराइजेज, इन विच ईयर 1950s to 1960. क्लियर? तो दैट इज आवर क्वेश्चंस कि व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. यू कैन राइट डाउन डच स्पीकिंग पीपल 59%, those live in the Flemish region, and those French speaking people 40%, or where they live in the Wallonia region, or 1% people speak here German, but in the capital city of Brussels, French speaking people 80%, or Dutch speaking people how much percentage? 40%. Clear? So one line you can also add कि here it means in the country Dutch are in the majority, but in the capital city they are in the minority. यानी कि those French speaking people in the country they are in the minority, but in the capital city they are in the majority, or they are gaining all the benefits before the Dutch speaking people. यानी कि who is, यहाँ पर कौन किसको सारा, तो इसका मतलब कौन सा हम कह सकते हैं कि कौन सा ग्रुप मेन पावरफुल देन कि द फ्रेंच माइनॉरिटी कम्युनिटी इज रिच एंड पावरफुल हियर. व्हाई? बिकॉज इन द कैपिटल सिटी दे आर हियर 80%. तो दैट इज योर कंप्लीट वन क्वेश्चन कि व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि इन विच ईयर बेल्जियम गेन इंडिपेंडेंस. इन विच ईयर बेल्जियम गेन इंडिपेंडेंस. Belgium gained independence in 1830. First question we have done power sharing. What is the meaning of power sharing? After that, in which continent is Belgium? Belgium is in Europe continent. After that, Belgium यानी कि name the countries that Belgium's borders with. There are the mainly 4 countries: France, Germany, Netherlands and Luxembourg. Clear? Now the next questions, what is the ethnic composition of Belgium? Clear? Now we will discuss. So it means we can say that the French minority community is, तो questions बन सकते हैं कि which community is rich and powerful here? The French minority. Clear? Now next question कि what is the ethnic composition in Sri Lanka? Here mainly 2 languages speak here, Sinhala and Tamil. But who are in the majority here? Sinhalas. 74% people speak here Sinhala language, or they follow mainly Buddhist they are there, and Christians also there. यानी कि those people speak Sinhala language, they are the Buddhist and Christians. And Tamils, here Tamils, how much percentage of people speaks here? 18% people speaks here Tamil. But Tamils is also given divided into subgroups, 2 subgroups. What are the subgroups? First, Indian Tamils. How much percentage of Indian Tamils are here? 5%. और native Tamils, how much percentage? 13%. यानी कि those who born in Sri Lanka, जो वहीं के निवासी हैं, that is called native Tamils. Clear? Tamil, तो यानी कि Tamil, how much percentage people speak here? 18%. That is also question में कि how much percentage of people speak Sinhala language in Sri Lanka? That is the language. Sinhalas, Tamils, these are the languages name. So which language is the majority here? 74%. Or those people speak here Sinhala language, they follow which religion? Buddhism and Christianity. And Tamils, Indian Tamils and native Tamils, 5% people here Indian Tamils, and 13% we can say the native Tamils. Or those who are follow here mainly maybe Hindu, Muslims and Christians. यानी कि जो यहाँ पर 18% तमिल बोलते हैं वो कौन से रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं? हिंदू भी हैं उसमें, मुस्लिम्स भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं. अदर्स 7% क्रिश्चियंस, जो अदर पर्सन 7% जो मेनली क्रिश्चियंस हैं, दे स्पीक बोथ लैंग्वेजेस. वी हैव डिस्कस हियर ना क्रिश्चियंस एंड क्रिश्चियंस, दे स्पीक हियर तमिल्स एंड सिन्हाला. यानी कि बोथ लैंग्वेज, यानी कि जो 7% लोग हैं जो फॉलो विच रिलीजन हियर? क्रिश्चियनिटी. And they speak which language here? Both Tamils and Sinhala. So it means which languages are in the majority here? Sinhala. Which language is majority here? Sinhala language is majority. Clear? So that is the ethnic composition of Sri Lanka. That is the question arises कि what is the ethnic composition of Sri Lanka? Sinhala, 74% people speak here. They follow which religion? Buddhist and Christian. और Tamils, how much percentage? 18%. Indian Tamils 5%, or native Tamil 13%. They follow which religion? Maybe Hindu, Muslims and Christianity. And other 7% are Christian. They follow which religion? Christianity. And they speak here
Tamil and Sinhala, both language they use here. Now next question arises, when did Sri Lanka gain independence? So Sri Lanka gained independence in 1948. In which year Sri Lanka gained independence from the British rule? 1948. Or Belgium gained independence in which year? We can say that the 1830. Clear? Now what do you mean by majoritarianisms? ये भी पूछ सकते हैं कि which country followed this policy? तो this country is followed by the Sri Lanka. Which country followed this? Sri Lanka. Now what is the meaning here? The majoritarianism. Majoritarianisms का मतलब क्या होता है? What can you say here? कि what do you mean by the majoritarianisms? It means majority community, they wants to rule the country according to their own their wish. They don't give the respect, यानी कि they disregarding यहाँ पर श्रीलंका में किसको disregarding कर रही है? तमिल स्पीकिंग पीपल को. तो who are here in the majority? Sinhala, दो यानी कि those people speak here Sinhala language. What they are here? They are in the majority. They want to rule the country whatever they want to do. It means they disregarding the respect of the minority group of people. Clear कि what is the meaning of majoritarianism? Majoritarianism का मतलब क्या है कि majority community जैसे चाहे country पर rule कर सकती है विदाउट डिसरिगार्ड, यानी कि माइनॉरिटी ग्रुप की ना उनको इंटरेस्ट का ध्यान में रख रही है कि उनको हर्ट हो रहा है. नो, डोंट टेक केयर, कोई उनका केयर नहीं कर रही है. तो दैट इज द व्हाट इज मीन्ड बाय मेजोरिटेरियन. यू कैन राइट डाउन इन 2-3 पॉइंट्स. क्लियर? नाउ डिस्क्राइब एनी 3 मेजोरिटेरियन measures taken by the Sinhala Sri Lankan government to establish Sinhala supremacy. Because which language is here superior? Sinhala. तो यानी कि which measures, यानी कि describe any 3 majoritarian measures taken by Sri Lankan government कि सिन्हाला लैंग्वेज को सुपरमेसी मिले. इसके लिए उन्होंने क्या किया? श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सबसे पहले उन्होंने एक्ट पास किया 1956. एक्ट वाज पास बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट व्हाट दे डिक्लेयर, इट मीन्स 1956 के अकॉर्डिंग क्या किया? सबसे पहले उनको सिन्हाला बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज. सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सिन्हाला लैंग्वेज को क्या बना दिया जाए? ऑफिशियल लैंग्वेज. तमिल को नहीं. विच लैंग्वेज बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज? सिन्हाला. क्लियर? सेकेंड, यानी कि दोज applicants will get the education in the Sinhala language, they prefer government jobs and educational qualification, यानी कि they will get all the educational benefit. Those who it means study in Sinhala language, उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, उन्हों कोई एजुकेशनल बेनिफिट होगा. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द थर्ड एक्ट, इसके अकॉर्डिंग थर्ड एक्ट क्या बनाएगी? इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट द बुद्धिज्म रिलीजन. वाई? because here Sinhala, then those people speak here Sinhala language, they follow which religion? Buddhist mainly. So it means state government will foster मतलब protect the which religion? Buddhism religion. And these are the 3 measures adopted according to which act? 1956. Clear? You will write down. Now which factors are responsible for increasing the feeling of alienations among the Sri Lankan Tamils? Alienation का मतलब क्या होता है? Separated. Now the Sri Lankan Tamils were feel कि now we are not the part of the country. क्यों उनको लगा कि हम अलग थे अपनी कंट्री से? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इनकी दोज हु विल गेट द फर्स्टली सिन्हाला बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज. इट मीन्स तमिल डजेंट गिव एनी इंपॉर्टेंस, यानी कि तमिल लैंग्वेज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई. सेकेंड, इन्होंने क्या किया? दे डिडंट गिव एनी पॉलिटिकल राइट्स. Who got all the political rights? Only those who will speak the which language? Sinhala language. Clear? It means they are not getting the proper benefits also in all. They are not getting the equally job also. Those or who are getting the job? Only Sinhala speaking people. Third, it means Sinhala speaking people, यानी कि Sri Lankan government doesn't take interest of the with Sri Lankan Tamil people. So that's why they have started. What they have started? They formed the political organization approximately in 1980s. In 1918, it means Sri Lankan Tamils, they formed political organization. According to what they demand here? Tamil Elam. They demanded Tamil Elam.
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तमिलम का मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट दे वॉन्ट। अब इन्होंने क्या डिमांड की कि जो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट है उसको क्या बना दिया जाए, जो श्रीलंकन तमिल्स के लिए एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, इंडिपेंडेंट स्टेट। ये पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय तमिलनाडु, यानी कि इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट और दैट वाज डिमांडेड बाय द श्रीलंकन तमिल्स और इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द country. We have clear here up to when did Sri Lanka gain independence? What do you mean by majoritarianisms? Describe any three majoritarian measures taken by the Sri Lankan government to establish Sinhala supremacy. Which factors are responsible for increasing the feeling of alienations among the Sri Lankan Tamils? आप इसमें ऐड कर सकते हो कि they didn't get the equal political rights, they didn't get any equal opportunities for getting the job also, and they didn't get any interest like Sinhala speaking peoples. Clear? Why did the civil war broke out in Sri Lanka and list the results of the civil war? कि क्यों, क्या रीजन्स हुए जिसकी वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ। हमने लास्ट क्वेश्चंस में पढ़ा था कि द डिस्ट्रेस बिटवीन द सिन्हाला स्पीकिंग एंड द तमिल स्पीकिंग पीपल, और दैट व्हाट हैपेंड, दैट टर्न इनटू ए वायलेंट फॉर्म, और जो वायलेंट फॉर्म में जो टर्न हुआ तो दैट व्हाट स्टार्टेड हियर सिविल वॉर, यानी कि विद इन द कंट्री विद टू अपोजिंग ग्रुप्स व्हेन दे आर फाइटिंग टू ईच अदर, और बट इट लुक्स लाइक ए वॉर, यानी कि अपनी ही कंट्री के अंदर दो अपोजिट ग्रुप के बीच में कोई वॉर होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, और किस वे में दिखाई देना एक सिविल वॉर के रूप में। तो दैट इज द मेन रीजन। और लिस्ट द थ्री रिजल्ट्स ऑफ द वॉर, ये मेन रीजन्स था। द डिस्ट्रेस बिटवीन द, यानी कि सिन्हाला स्पीकिंग एंड द तमिल स्पीकिंग, तो दैट issues, yeah, we can say that the tensions turned into a violent form or that violent form turned into a civil war. तो इससे क्या लॉस हुआ? List the results of the civil war. We know कि यानी कि thousands of people were killed, both the communities मतलब तमिल स्पीकिंग के भी और सिन्हाला स्पीकिंग दोनों कम्युनिटीज़ के thousands के आसपास लोग मारे गए, and most of the people lost their livelihoods और many people were forced to leave the country. ये भी एक लॉस हुआ सिविल वॉर से। थर्ड रीजन्स क्या हुआ, जो वहाँ का श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस था उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, वहाँ पर इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पा रही थी दोनों टेंशंस की वजह से। तो आपको इसमें ये पूरे पॉइंट्स लिख रहे हैं कि व्हाई डिड द सिविल वॉर ब्रोक आउट इन, इसमें आप लिख सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन द तमिल स्पीकिंग एंड द सिन्हाला स्पीकिंग और दैट कॉन्फ्लिक्ट टर्न इनटू ए सिविल वॉर, एंड लिस्ट आप ये तीनों रीजन्स लिख देंगे कि इसमें thousands ऑफ पीपल वर किल्ड, मैनी पीपल वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, and third points what you can add here, you can write down the Sri Lankan in general suffered from an economic crisis, कि जो श्रीलंका का था वो इकोनॉमिक क्राइसिस भी सफ़र हुआ। नाउ हाउ मैनी टाइम्स बिटवीन 1970 टू 1993, ये आपका शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, पहले ध्यान से सुनो। वॉज द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, यानी कि 1970 से लेकर 1993 तक बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशंस वॉज अमेंडेड। अमेंडेड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडेड? चेंज। कि कितनी बार 1970 से लेकर 1993 तक बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया? 4 टाइम्स। यह आ सकता है कि जो बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया 4 टाइम्स, इन विच पीरियड, तो आप उसका ये आंसर लिख सकते हो 1970 टू 1993। क्यों? बिकॉज श्रीलंका अडोप्टेड द मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी बट श्रीलंका डिडंट अडोप्ट। Belgium didn't adopt और श्रीलंका adopted the majoritarianism policy, और Belgium what they want to do, they want to accommodate all the languages, कि सभी लैंग्वेजेस को इक्वली इम्पोर्टेंस मिले। इसके लिए इन्होंने क्या प्रोविजंस किया, ये हम ये करेंगे इसके अंदर कि व्हाट आर द सम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। बेल्जियम मॉडल का मतलब जो बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो 1970 से लेकर 1993 4 टाइम्स चेंज किया, उसके अंदर इन्होंने क्या प्रोविजंस किया। ये आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकता है कि व्हाट आर सम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहले तो क्या इन्होंने प्रोविजन किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनेगी उसके अंदर क्या किया कि इक्वल मिनिस्टर शुड बी देयर, बोथ लैंग्वेजेस मतलब डच स्पीकिंग और द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शुड बी या शैल बी इन इक्वल, ये किया गया। नो वी कैन से दैट द कम्युनिटी कैन टेक यूनिलेटरली डिसीजन, यानी कि कोई कम्युनिटी एक अपने लेवल पर डिसीजन नहीं ले सकती है। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो
they have given the some power to the state government also, and it is not compulsory to the state government to subordinate to the central government. अब ये जरूरी नहीं था कि स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट को सबॉर्डिनेट करेगी. थर्ड, इन्होंने क्या किया, जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, वहाँ पर जो मिनिस्टर्स होंगे इक्वल रिप्रेजेंटेशन शुड बी देयर, बोथ द लैंग्वेजेस, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग हो चाहे डच स्पीकिंग, क्योंकि कंट्री में तो डच ने फ्रेंच की बात मान ली और कैपिटल सिटी में किसने किसकी बात मान ली, फ्रेंच मेजोरिटी में थे तो उन्होंने डच की बात, तो इक्वल हो गया दोनों. यहाँ कोई एक उन्होंने एक थर्ड और प्रोविजन किया, ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो मेड हियर, फॉर्म हियर. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, कम्युनिटी गवर्नमेंट. ये आ सकता है कि उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाएगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट और बिलोंगिंग, यानी कि दे हु, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट मैंने लिखा कि हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन, यानी कि हु कैन इलेक्ट सर पर्टिकुलर दे एनी लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, पर्टिकुलर बिलोंगिंग टू एनी लैंग्वेज, यानी कि डच स्पीकिंग हो चाहे फ्रेंच स्पीकिंग हो चाहे जर्मन स्पीकिंग, दे कैन चूज देयर, दे कैन फॉर्म देयर ओन government. And which type of issues will be there related to the language, culture, education, these type of issues they can discuss here. दोनों क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए. इसमें आपको 4 पॉइंट्स ऐड करने हैं कि व्हाट आर द बेल्जियम, पहले आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है ये भी आपको ऐड करना है कि बेल्जियम्स मॉडल जो अडोप्ट किया गया है इसको, यानी कि बेल्जियम की सभी को इक्वली इंपॉर्टेंस देने के लिए, इजीली एडजस्ट करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए डिफरेंट डाइवर्सिटी को, दे हैव चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स 1970 टू 1993. आपको लिखा, फिर आपको लिखना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि इक्वल मिनिस्टर शुड बी देयर. इक्वल मिनिस्टर मतलब मे बी फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, यानी कि नो कम्युनिटी कैन टेक द यूनिलेटरली वन साइडेड डिसीजन दे कैन नॉट टेक. They have given some power to the state government, but it is not compulsory to the state government to subordinate to the central government. Clear? Third point, in the capital city Brussels, they have given the equal representations both the communities French and the Dutch speaking. Fourth point क्या ऐड कर लिखेंगे हम इसके अंदर, they formed, यानी कि elected here they can form third types of apart from the central और the, ये भी क्वेश्चंस बन सकता है आपका कि apart from the central and the state government which third type of government they formed here, तो community government आप लिख सकते हो. और ये भी हो सकता है कि community government जो फॉर्म की गई श्रीलंका या बेल्जियम, तो योर आंसर शुड बिकम हियर बेल्जियम, तो ये आप ऐड सकते हैं. एंड हु कैन चूज हियर, यानी कि हु कैन इलेक्ट हियर द कम्युनिटी गवर्नमेंट है पीपल बिलोंगिंग टू लैंग्वेज any particular, maybe Dutch, French and the German, or which type of issues they can discuss here, maybe language, education, this type of, and cultural. And which city was chosen as its headquarters when the European Union formed, यानी कि जब यूरोपियन यूनियन फॉर्म की गई, क्योंकि यूरोपियन यूनियन फॉर्म की गई तो यहाँ पर किसको अडोप्ट किया गया, ब्रुसेल्स. क्यों, क्योंकि बेल्जियम ने जिस हिसाब से जो अकोमोडेट किया डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ को, तो हर यूरोपियन जो यूनियन बनाएगी उन्होंने भी इसी मॉडल को अडोप्ट किया. तो ये कहाँ पर बनाया गया, ब्रुसेल्स के अंदर हेडक्वार्टर्स बनाया गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई पावर शेयरिंग इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी. दीज आर द 2 रीजन्स फॉर द पावर शेयरिंग. मेन है वो हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट डू मीन बाय द पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग मीन्स शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स बाय द different organs of the government. Now why, these are the 2 main reasons. We can here write down the moral reasons and prudential reason. These are the 2 reasons कि power sharing is essential in a democracy. First, prudential reasons का मतलब क्या है कि power sharing क्यों essential है. Prudential reasons का मतलब क्या है, reasons for power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. अगर हम प्रूडेंशियल रीजन्स के थ्रू अगर पावर को डिवाइड करते हैं, क्यों डेमोक्रेसी में जो है, तो इट रिड्यूस द सोशल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इट रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सोशल ग्रुप्स. वी नो वेरी वेल इन बोथ, इन आवर कंट्री, इन द बोथ मतलब वी कैन से दैट द पार्लियामेंट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. तो अगर हमने सीट्स डिवाइड कर दी तो क्या कंट्री के अंदर सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेज होंगे, नहीं होंगे. इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी. अगर हम पावर को इक्वली डिवाइड करेंगे, पावर को हर ग्रुप में डिवाइड करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्या रहेगा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी, यानी कि हमारा जो राजनीति में उतार चढ़ाव बना रहेगा, यानी कि हम परमानेंट बना ही नहीं सकते, कोई सोल्यूशन ही नहीं कर पाएंगे. और सेकंड रीजंस क्यों हैं, मोरल रीजंस.
मोरल रीजन्स का मतलब दे हैव अडॉप्टेड द मेथड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब people are having the power to be consulted on which particular matter. Firstly, they can participate in the election process, and through the election process they will choose their representatives, or with the help of their representatives they can they can check the governments, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्रोग्राम्स के ऊपर रोक लगा सकते हैं कि वाई आर यू डूइंग, नॉट डायरेक्टली वी कैन से, बट विद थ्रू द आवर रिप्रेजेंटेटिव, जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चूज की हैं उनके थ्रू हम अपनी बात रख सकते हैं गवर्नमेंट के सामने, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आपने पॉलिसीज़ क्यों अडोप्ट की। यानी कि इसमें वी कैन से दैट मोरल रीजंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने पर्टिकुलर पर्सन को यानी कि इसमें पार्टिसिपेट करने का चांस दिया है। तो दीज आर द प्रूडेंशियल का समझ में आ गया होगा शायद आपको, यानी कि रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, वो हमने सीट्स रिजर्व की हुई है। मोरल रीजंस का मतलब क्या है कि हमने इसमें सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका, कंसल्टेड ऑन हाउ दे वी गवर्न, कि कैसे हमारे कंट्री के रूल्स रेगुलेशन चलेंगे, कैसे हमें अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करनी है। ये तो आप इसमें आप दोनों पॉइंट्स लिख देते, वाई पावर शेयरिंग इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। ये आपने लिखा प्रूडेंशियल में, मोरल दोनों रीजन्स आप बताने हैं, दोनों को एक्सप्लेन करना है। क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये क्वेश्चंस आपका 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछा जाता है बेटा, कई बार 1 मार्क्स में पूछते, वो भी मैं आपको बताती चलूँगी, पर डायरेक्ट अगर ये आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो हम बुक के अकॉर्डिंग हमें फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के मतलब 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे पहले पावर को कहाँ डिवाइड किया गया है? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। You know very well what are the different organs of the government? Legislatures, executives and judiciary. And you know very well what is the function of legislatures, executives and judiciary का क्या क्या काम है, सबको पता है। तो तीनों को अलग अलग पावर दी गई है। इफ़ वी विल नॉट, ये क्या कहलाएगा? डिफरेंट पावर्स का डिवाइड करना है, सेपरेशन ऑफ पावर भी हम कहेंगे। और जो डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में जो पावर डिवाइड होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और क्या बोल सकते हैं उसको हम? ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर है उसको हम क्या बोल सकते हैं? हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि पावर इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अदरवाइज व्हाट विल बी हैपन कि वन ऑर्गन विल मिसयूज द पावर। अगर हम पावर को इक्वली डिवाइड नहीं करेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स में, तो वो अपनी पावर का क्या करेंगे? मिसयूज करेंगे। अगर पावर इक्वली डिवाइडेड तो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर चेक लगा सकता है, यानी कि रोक लगा सकता है, यानी कि लेजिस्लेचर्स एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर रोक लगा सकती है कि वाई आर यू मिस यूजिंग द पावर। तो इसीलिए इस सिस्टम को हम किस नाम से और जानते हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में, चेक एंड बैलेंसेस। चेक एंड बैलेंसेस। अब इसमें देखो बेटे शॉर्ट्स, इसी में लॉन्ग भी आपको पूरा करना है, अच्छे से एलोबरेट करना है। पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, आपको तीनों को एक्सप्लेन करना है, लिख के तीनों ऑर्गन्स के नेम लिख के, किसके पास क्या पावर है, कौन किसके ऊपर रोक लगा सकता है, चेक कर सकता है। नहीं तो अपनी पावर का अनलिमिटेड यूज़ करेंगे, नहीं होगा। और ये सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में जो पावर है वो किस नाम से जाना जाता है? हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर चेक लगाता है तो उसको क्या जानते हैं? चेक एंड बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? सेकंड है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में, पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। वी नो वेरी वेल इन आवर कंट्री वी आर हैविंग द मेनली 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन लेवल, स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल, यानी कि गवर्निंग द होल कंट्री, जो पूरी कंट्री को जो गवर्न करेंगे। दिस सिस्टम इज नोन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, या वी कैन से दैट द फेडरल गवर्नमेंट ऑल्सो। एंड सेकंड, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑल्सो, बट इन आवर कंट्री वी से द स्टेट government also at the state level work. And third level, local level मतलब municipalities and the panchayat, municipalities in the cities and towns, or panchayat we can say that in the villages work. And those power divided among the different levels of government. This system is known as beta vertical division of power, vertical division of power. But in the different levels of government at different level, यानी कि those powers are divided is not equally divided. Why? Because who is more powerful in our country? Central government is more powerful comparatively to the state and the
लोकल लेवल। और बेटा लोकल गवर्नमेंट को तो हमने पावर कब दी है, 1992 के बाद, जब हमने कौन सा मेथड अडोप्ट किया, जो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस व्हेन वी हैव अडोप्टेड। क्लियर? तो आप इसमें पूरा इलोबरेट करके लिखेंगे, तीनों गवर्नमेंट का नेम लिखकर उसको इलोबरेट करेंगे कहाँ पर काम करती हैं। फिर है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हाउ वी कैन से दैट द पॉलिटिकल पार्टीज, बेटा वी नो वेरी वेल नाउ, नॉट ए सिंगल पार्टी got the majority nowadays. It means when 2 or 3 parties are joining before the election also or after the election also. When 2 or 3 parties before the elections, when they are joining hand for contesting the election, this system is known as alliance. यानी कि वो पहले ही डिसाइड कर लेते, अगर हम पावर आएंगे तो हम ये मिनिस्टर बनाएंगे, आपको ये बनाएंगे, आपको ये पावर देंगे, आपको ये डेजिग्नेशन देंगे। और आफ्टर द इलेक्शंस जो करते हैं उसको बोलते हैं कोएलिशंस गवर्नमेंट। यानी कि when 2 or 3 parties are coming together and they are forming the government, this system is known as the coalition government after the election। तो इसमें भी पावर डिवाइड हो रही है, क्योंकि कोई किसी को कुछ मिनिस्टर्स बनाएंगे, कोई किसी को कुछ मिनिस्टर बनाएंगे, तो यानी कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर डिवाइड हो रही है। और कैसे डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स भी अपनी बात मनवाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, यानी कि कुछ पावर उनके पास भी है, वो भी अपनी बात मनवा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स क्या हो सकता है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक या रिलीजियस, कि जो लैंग्वेज बेसिस पर जो ग्रुप है उनको क्या पावर दी है, जो रिलीजियस बेसिस पर उनको क्या पावर दी है। जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने पढ़ा था बेल्जियम में, जो थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो अडोप्ट की गई थी बेल्जियम में, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में हम डाल सकते हैं। In our country, we also have given the power to the socially weaker section of the society, यानी कि SC and ST के लिए सीट्स रिजर्व हैं बेटा, वीमेंस के लिए बोथ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सीट्स रिजर्व है, ये हम कर रहे हैं, यू नो वेरी वेल। और वी हैव ए सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट, ये भी हमारी सीट्स रिजर्व है। यानी कि आप में इसको पूरा सोशल ग्रुप्स के बीच में कैसे पावर डिवाइडेड है वो आपको एलोबरेट करना है, कि डिफरेंट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, कैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, उनके बीच में पावर डिवाइडेड है, और कैसे हमने वीमेंस को रिजर्वेशन दिया हुआ है, वीकर सेक्शंस को है, या पूरा या लैंग्वेज बेसिस पर हम इसमें कर सकते हैं, या हम रिलीजियस बेसिस पर। तो आई होप यू गोट इट ऑल द क्वेश्चंस। यानी कि पावर शेयरिंग अमंग एट द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, क्लियर बेटा, वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर, and power sharing among political parties and pressure groups, and power sharing among different social groups. So dear students, we have discussed today's question and answer. Which chapter? Power sharing. Most of the questions we have covered, but for better understanding, what will you do? Read the chapter carefully line by line, and after that those question and answer we have discussed here, write down in your notebook, in fair notebook, and after that learn and write. First watch the video carefully, and after that learn and write all the questions and answers. After that your first chapters will be completed. If you are having any doubt, so we will discuss in the live class. Thank you.